فقیر نے حضرت بازید بسطامی کو دیکھتے ہی ایسی بات کہہ دی کہ حاضرین حیران رہ گئے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ چند لمحوں بعد ہونے والا واقعہ ان کی پوری زندگی بدل دے گا۔ آخر اس فقیر نے کیا کہا اور حضرت بازید بسطامی نے ایسا کیا جواب دیا جس نے ہزاروں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ وہ فقیر 3 دن سے بھوکا تھا، مگر جب حضرت بازید بسطامی اس کے قریب پہنچے تو اس نے روٹی نہیں مانگی۔ اس نے صرف ایک سوال کیا، ایسا سوال جسے سن کر مجمع پر خاموشی چھا گئی۔ حضرت بازید بسطامی رحمت اللہ علیہ چند لمحے خاموش رہے، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حاضرین سمجھ نہ سکے کہ ایک معمولی فقیر کی بات نے اتنے بڑے اللہ والے کے دل کو کیوں ہلا دیا، مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ اسی سوال سے کیسی داستان شروع ہونے والی ہے جو صدیوں تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ صبح کی پہلی کرن ابھی افق پر نمودار ہی ہوئی تھی کہ بسطام کی گلیوں میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بازار ابھی پوری طرح نہیں کھلے تھے، مگر مسجد سے فجر کی نماز پڑھ کر نکلنے والے لوگوں کے چہروں پر عبادت کا نور جھلک رہا تھا۔ انہی گلیوں سے حضرت بازید بسطامی رحمت اللہ علیہ خاموشی سے گزر رہے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ نماز کے بعد شہر کے غریب لوگوں کا حال دریافت کرتے، بیماروں کی عیادت کرتے اور مسافروں کی مدد فرماتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا عصا تھا اور زبان پر مسلسل اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری تھا۔ اسی راستے کے کنارے ایک بوڑھا فقیر بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے اور گرد آلود تھے، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ نہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا اور نہ کسی سے سوال کر رہا تھا۔ جو شخص اسے دیکھتا یہی سمجھتا کہ شاید وہ دنیا سے بے نیاز کوئی خاموش درویش ہے۔ حضرت بازید بسطامی رحمت اللہ علیہ جب اس کے قریب پہنچے تو فقیر نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس نے غور سے حضرت کو دیکھا، جیسے وہ برسوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ پھر نہایت ادب سے سلام کیا۔ حضرت نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا اور اس کے پاس بیٹھ گئے۔ آس پاس موجود چند لوگ بھی حیرت سے رک گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت ہر شخص کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں۔ فقیر نے آہستہ آواز میں کہا، اے بازید، لوگ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے مقرب بندے ہو۔ مجھے یہ تو بتاؤ کہ اگر ایک انسان ساری عمر عبادت کرے مگر اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے غرور آ جائے تو کیا اس کی عبادت محفوظ رہتی ہے؟ یہ سوال سن کر وہاں خاموشی چھا گئی۔ لوگوں کو توقع تھی کہ حضرت فوراً جواب دیں گے، مگر وہ کچھ لمحے خاموش رہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر اپنی نظریں جھکا لی۔ ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ آخرکار انہوں نے فرمایا، عبادت انسان کو جنت تک نہیں پہنچاتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہنچاتی ہے، اور غرور وہ آگ ہے جو نیکیوں کے باغ کو جلا سکتی ہے۔ اس لیے بندے کو ہر لمحہ اپنے نفس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، آپ نے وہی جواب دیا جس کی مجھے امید تھی، مگر میرا سوال ابھی ختم نہیں ہوا۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی نے دل میں سوچا، یہ فقیر آخر ہے کون جو حضرت بازید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے اس انداز میں گفتگو کر رہا ہے؟ مگر حضرت کے چہرے پر ذرا بھی ناگواری نہ تھی۔ وہ پوری توجہ سے اس کی بات سن رہے تھے۔ فقیر نے کہا، اگر کوئی شخص دنیا بھر کے لوگوں کی مدد کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، مسافروں کو پناہ دے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے، لیکن اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، تو کیا وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ حضرت نے گہری سانس لی اور فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب وہی ہوتا ہے جو اپنی ہر نیکی کو اللہ کا فضل سمجھے، اپنا کمال نہ سمجھے۔ جس دن بندہ اپنی عبادت پر فخر کرنے لگے، اس دن وہ اپنے رب سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر فقیر خاموش ہو گیا۔ چند لمحے گزرے تو اس نے اپنی جھولی سے ایک خشک روٹی نکالی، اور وہ روٹی اتنی سخت تھی کہ شاید کئی دن پرانی تھی۔ اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا اور حضرت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میری کل جمع پونجی ہے، اگر آپ اسے قبول کر لیں تو میں خود کو خوش نصیب سمجھوں گا۔
मजमा हैरान रह गया। लोगों ने सोचा कि हजरत इतनी पुरानी और खुश्क रोटी कैसे कबूल करेंगे, मगर हजरत बाजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई एहतराम से वो रोटी अपने दोनों हाथों में ली और इस पर बिस्मिल्लाह पढ़ी और एक लुकमा खा लिया और फिर फरमाया, मोहब्बत से दिया गया एक खुश्क लुकमा तकब्बर से दिए गए हजारों खानों से बेहतर है। फकीर की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने कहा, आज मेरा इम्तहान पूरा हो गया। मैं 3 दिन से भूखा था, मगर मैं देखना चाहता था क्या वाकई आप हर इंसान को बराबर समझते हैं या नहीं। हजरत ने इसका हाथ पकड़ा और फरमाया, भाई तुमने मेरा इम्तहान नहीं लिया बल्कि अल्लाह ताला ने हम दोनों को आजमाया है। ये सुनकर हाजरीन पर अजीब कैफियत तारी हो गई। कई लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। इन्होंने पहली बार महसूस किया कि आजिज़ी सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि अमल से साबित होती है। इसी दौरान एक अमीर ताजर वहां पहुंचा। इसके साथ कई मुलाजिम थे और ऊँटों पर कीमती सामान लदा हुआ था। इसने दूर से ये मंजर देखा तो हैरान रह गया। इसने आगे बढ़कर सलाम किया और अर्ज किया, हजरत मेरे घर तशरीफ लाएं, मैंने आपके लिए बेहतरीन खाने तैयार करवाए हैं। हजरत ने नरमी से फरमाया, मैं जरूर आऊंगा, मगर पहले इस फकीर के साथ बैठकर इसकी बात मुकम्मल सुन लूं। ताजर को ये बात अच्छी न लगी, लेकिन वो खामोश रहा। फकीर ने हजरत की तरफ देखा और कहा, आज शाम सूरज गरूब होने से पहले एक ऐसा वाकया पेश आएगा जो इस ताजर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख देगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। किसी को मालूम न था कि फकीर ने ये बात क्यों कही और शाम तक क्या होने वाला है। ताजर भी परेशान हो गया, मगर इसने कुछ न पूछा। हजरत बाजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ इतना फरमाया, जो कुछ अल्लाह ताला चाहेगा वही होगा। बंदा ना मुस्तकबिल जानता है और ना तकदीर बदल सकता है। लोग आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर होने लगे, मगर हर शख्स के दिल में एक ही सवाल था, आखिर शाम होने से पहले ऐसा क्या होने वाला है जिसका जिक्र इस पुरइसरार फकीर ने किया है। शाम ढलने में अभी चंद घंटे बाकी थे, मगर पूरे शहर में एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि वो पुरअसरार फकीर आखिर कौन था। शाम का वक्त करीब आता जा रहा था, मगर शहर के लोगों के दिलों में बेचैनी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। हर शख्स इस पुरअसरार फकीर की बातें कर रहा था, जिसने सुबह हजरत बाजीद बस्तामी के सामने चंद ऐसे सवाल रखे थे जिन्होंने बड़े बड़े अहले इल्म को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। अमीर ताजर भी बज़ाहिर पुरसुकून नजर आ रहा था, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सा खौफ और इस्तराब पैदा हो चुका था। वो बार बार फकीर के अल्फाज याद कर रहा था कि आज सूरज गुरूब होने से पहले तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। इधर हजरत बाजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा की तरह मुकम्मल सुकून के साथ अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल थे। आपके चेहरे पर ना परेशानी थी और ना ही मुस्तकबिल के बारे में कोई बेचैनी, क्योंकि आप जानते थे कि बंदे का काम अल्लाह ताला पर भरोसा करना है, ना कि आने वाले वक्त की फिक्र में घुलते रहना। इसी दौरान वही फकीर दोबारा हजरत के करीब आया। इसने निहायत अदब से अर्ज किया, हजरत अगर एक इंसान के पास बेशुमार दौलत हो लेकिन इसका दिल गरीबों के लिए ना धड़के तो क्या वो वाकई अमीर कहलाने के हक रखता है। हजरत बाजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असल अमीरी माल की नहीं बल्कि दिल की होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास खजाने हैं मगर इनके दिल खाली हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जिनके पास दुनिया का कुछ नहीं मगर इनके दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत और मखलूक की खैर ख्वाही से भरे हुए हैं। अल्लाह ताला के नजदीक वही शख्स हकीकी अमीर है जो दूसरों के काम आए। ये अल्फाज सुनकर वहां मौजूद लोगों पर गहरा असर हुआ, मगर अमीर ताजिर अब भी खामोश खड़ा था। इसे महसूस होने लगा था कि शायद फकीर की हर बात किसी न किसी अंदाज में इसकी तरफ इशारा कर रही है। वो दिल ही दिल में अपने माजी को याद करने लगा। इसे याद आया कि कई मर्तबा इसके दरवाजे पर भूखे लोग आए, लेकिन इसने अपने मुलाजमों को कहकर इन्हें वापस भेज दिया। कितने ही यतीम इससे मदद मांगने आए, मगर इसने इन्हें मामूली चंद सिक्के देकर टाल दिया। आज पहली मर्तबा इसे अपनी दौलत पर फख्र के बजाय शर्मिंदगी महसूस होने लगी। हजरत बाजीद बस्तामी ने इसकी तरफ देखा जैसे वो इसके दिल की कैफियत जानते हो। आपने नरमी से फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे से खैर का इरादा करता है तो सबसे पहले इसके दिल को जगाता है। अगर दिल जिंदा हो जाए तो इंसान की जिंदगी बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता।
ये अल्फाज ताजिर के दिल में तीर की तरह उतर गए। इसकी आंखें नम हो गईं, मगर वो अभी भी खामोश था। इसे अपने गरूर का बोझ पहले से कहीं ज्यादा महसूस होने लगा था। इतने में शहर के एक गरीब मजदूर की बीवी रोती हुई वहां पहुंची। इसने अर्ज किया, हजरत, मेरे शोहर कई दिनों से बीमार हैं। घर में ना दवा है ना खाने को कुछ। मेरे छोटे बच्चे भूख से रो रहे हैं। हजरत बाजीद बस्तामी फौरन उठ खड़े हुए और बगैर किसी ताखीर की सूरत के साथ चल पड़े। फकीर भी खामोशी से इनके साथ हो लिया। अमीर ताजिर ने भी इनका पीछा किया, मगर इसके दिल में अजीब सी कशमकश जारी थी। जब सब लोग इस गरीब के घर पहुंचे तो वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। टूटी हुई छत, मट्टी की दीवारें, एक कोने में बीमार मजदूर और उसके गिर्द सहमे हुए बच्चे। हजरत बाजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह इनके पास बैठ गए। इनका हाल पूछा, अल्लाह ताला से दुआ की और लोगों को तरगीब दी कि इस खानदान की मदद करें। ये मंजर देख कर कई लोग आगे बढ़े और अपनी इस्तायत के मुताबिक मदद पेश करने लगे। अमीर ताजिर सब कुछ खामोशी से देखता रहा। इसने पहली बार महसूस किया कि जिस खुशी की वो बरसों से तलाश कर रहा था वो दौलत जमा करने में नहीं बल्कि किसी के आंसू पोंछने में है। फकीर ने आहिस्ता से ताजर के करीब आकर कहा, आज सुबह तुमने हजरत को अपने महल में दावत दी थी, मगर अल्लाह ताला ने इन्हें पहले इस झोंपड़ी में भेज दिया क्योंकि यहाँ एक भूखा दिल इनका इंतजार कर रहा था। याद रखो, जिस घर में भूख और मजबूरी हो वहां पहुंचने वाला कदम अल्लाह ताला को बहुत महबूब होता है। ये अल्फाज सुनकर ताजर अपने आंसू न रोक सका। इसने इसी वक्त अहद किया कि आज के बाद इसकी दौलत सिर्फ इसकी अपनी नहीं रहेगी बल्कि इसमें गरीबों, यतीमों, मुसाफिरों और मोहताजों का भी हक होगा। हजरत बाजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तरफ देखा और फरमाया, तौबा सिर्फ जुबान से नहीं होती बल्कि अमल से साबित होती है। अगर तुम अपने फैसले पर कायम रहे तो अल्लाह ताला तुम्हारे रिज्क में भी बरकत देगा और तुम्हारे दिल को भी सुकून अता फरमाएगा। शाम के साए गहरे होने लगे। सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफक के पीछे छुप रहा था। लोगों ने महसूस किया कि वाकई एक दिन में इस ताजर की सोच बदल चुकी है। वो शख्स जो सुबह अपनी दौलत पर फख्र करता था, शाम होते होते आजिज़ी अख्तियार कर चुका था। सब हैरान थे कि आखिर वो फकीर कौन था जिसकी चंद बातों ने एक मगरूर दिल को नरम कर दिया। मगर फकीर खामोशी से वहां से रवाना हो गया, जैसे इसका मकसद सिर्फ दिलों को बेदार करना था, अपनी पहचान करवाना नहीं। लोग खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। हर एक के दिल पर इस वाक़े का गहरा असर हो चुका था। हर एक के दिल पर बहुत से लोगों ने इस वक्त यह इरादा किया कि वो अपने रवैये बदलेंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, वालिदैन का एहतराम करेंगे और हर नेकी सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए करेंगे। जब लोग वापस जाने लगे तो इन्होंने देखा कि वो पुरअसरार फकीर कहीं नजर नहीं आ रहा। किसी ने इसे हर तरफ तलाश किया मगर वो जैसे आया था वैसे ही खामोशी से चला गया। हजरत बाजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान की तरफ निगाह उठाई, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फरमाया, ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को हमेशा तकब्बर से महफूज रख, हमें इखलास, मोहब्बत, सब्र और आजिज़ी अता फरमा और हमें इन लोगों में शामिल फरमा दे जिनसे तू राजी हो। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत इसका पाकीज़ा दिल, अच्छा इखलाक और अल्लाह ताला की रजा के लिए किया गया अमल है। दुनिया की दौलत एक दिन ख़त्म हो जानी है, लेकिन इखलास, नेकी और खिदमत खलक का अजर हमेशा बाकी रहता है। अगर आपको ये सबक आमोज़ वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर पसंद करें, अपने दोस्तों, अहले खाना के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी मज़ीद ईमानी फ़रोज़ और सबक आमोज़ इस्लामी कहानियाँ देख सकें। और जाते जाते कमेंट में अल्लाह ताला के 99 मुबारक नामों में से कोई एक ज़रूर लिखें, मसलन अर्रहमान, अर्रहीम, अल-मालिकुल या अल-गफूर, या इनमें से कोई भी जो आपको लिखना आता आप लिख सकते हैं। और अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमत और हदायत नसीब फरमाए, आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।